Assalamu alaikum students, good afternoon. Uh, Today our lecture will be about personal mastery. Okay? In the learning organization there were five disciplines. Okay? Uh, since the name of the book was the fifth discipline, ठीक है, the learning organization जो subject है that is wholly occupied by these five disciplines. ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने discipline discuss किया था that was system thinking. ठीक है, system thinking जो कि embody करता है आपके इंडिविजुअल को भी और आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके मतलब ये सिस्टम थिंकिंग या सिस्टम आर्किटाइप ये हर जगह पे क्या कर रहा होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट प्लेज इट्स रोल. ठीक है, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द सेकंड डिसिप्लिन दैट इज़ पर्सनल मास्टरी. ठीक है, देन देर आर द मेंटल मॉडल्स जो कि कमिंग क्लासेस में हम लोगों ने देखना है, और शेयर्ड विजन एंड टीम लर्निंग. ठीक है, ओके. Personal mastery. Personal mastery simply, what does it mean? Personal mastery means becoming a master in your field. Okay? It talks about growth and development of an individual. Okay? इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. There are some aspects of personal mastery. ठीक है, personal mastery will only be achieved if these steps, these aspects are met. ठीक है, personal mastery जो है it's not like it's not part of the system. Like if you are working in an organization and that organization do not believe in development and growth of an employee, then you cannot become a master of your field. So these are the areas which flourish the field for you to become a master of your field. ठीक है, the first one is the spirit of learning organization. ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे. Spirit of a learning organization. An organization must have the will and the desire to be a learning organization, and it must have the desire to uplift its employees. ठीक है, the second one is mastery and proficiency. What does it mean? What does mastery mean? हम ये भी डिस्कस करेंगे. Why we want it? Why we want it means why an organization want it. Why an organization wants its employee to be a master of his or her field. ठीक है, then we'll discuss the resistance. ठीक है, the resistance to change. ठीक है, the way to bring about a change, the tools which are used to avoid or fight out this resistance. Okay, the discipline of personal mastery and holding creative tension. What does creative tension means? हम ये भी देखेंगे. ठीक है, then we'll go through the structural conflicts. Structural conflict exists in organizations, in human natures. हम ये देखेंगे structural conflict उसका कैसे मुकाबला करना है. The power of your powerlessness. ठीक है, the power of status quo. Commitment to the truth. ठीक है, being truthful to yourself, to your subconscious mind, to your soul, using subconscious, okay, in becoming a personal master. Personal mastery and the fifth discipline, fostering personal mastery in an organization. This will be our last subtopic. Okay, the first one is the spirit of a learning organization. For an employee to become a personal master in his or her field, an organization must provide that field, that opportunities. ठीक है, अब if an organization does not believe in growth and development of itself and an employee, उस organization में क्या होता है, personal mastery for an individual, it becomes very difficult to become a master. ठीक है, a master of his or her field.
Now, the learning organization, whether it's research and development, we're talking about the spirit of learning organization, company management, or any other aspect of the business, the active force is its people. ठीक है, आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हाट्स इट्स मेड अप ऑफ, आपके लोगों, आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो ही आपकी कंपनी बनाती है, आपकी मैनेजमेंट बनाती है, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम्स भी लोगों से बनती है, ठीक है. एंड पीपल हैव देयर ओन विल. अब मसला क्या है, people have their own wills, their own way of thinking, their own mind. If the employees themselves are not sufficiently motivated of challenging the goal of growth and development, there will be simply no growth, no gain in productivity, okay, and no technological development. So it's a two-way process. In the first hand, an organization must be willing to be adopting those processes of achieving achieving growth, or achieving to be named as a learning organization. आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो जुस्तजू व तजस्सुस ना हो, तो ना ही वो अपनी एम्प्लॉयज़ को जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती है, और ना जो है फिर यही लोग, यही आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या करेंगे, वो इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ नहीं दे सकते, ठीक है, जिससे अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी वो क्या होगी, इम्पैक्ट होगी. सो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी कॉल्ड अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, या अगर वो चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ उसके साथ लॉयल हो, उसकी लर्निंग हो, तो वो क्या करेगी, they have to identify not only the conscious mind, also the subconscious mind of employees. उनको पता होना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉयज़ चाहते क्या है, ठीक है, उनके विल पावर को आइडेंटिफाई करना होगा और उनके विल पावर को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है. only then an employee will be loyal towards that organization, ठीक है. The second one is mastery and proficiency. People with high level of personal mastery are continually expanding their ability to create the result in life they truly seek, ठीक है. Now personal mastery does not mean कि आपके पास बहुत knowledge है. It only means कि आपके पास जितना भी knowledge है उसको कैसे creatively आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. Like we previously discussed, it does not mean competence and skills, but it has to that employee has to have the ability to apply those that competence and skill in an organizational setup, okay. Now for a person to be going towards the growth and development, he has to identify some phenomena, say it, to get some clarity about himself or herself, okay. The first one is he or she has to clarify what is important to him or her, ठीक है. पहले तो उसको अपना गोल पता होना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, या व्हाट आर द प्रायोरिटीज, ठीक है. एंड द सेकंड वन इज द करंट रियलिटी, ठीक है, मुझे पता चल गया है कि यार दीज आर माय प्रायोरिटीज, मैं चाहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहता हूँ अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं गया हूँ, मतलब एंट्री लेवल पे, और मैं चाहता हूँ कि उसका मैं मैनेजर बनूँ, तो मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं अपने करंट रियलिटी में मैं क्या हूँ, क्या मेरे पास वो स्किल्स, वो कॉम्पिटेंस और वो डिज़ायर है या नहीं है, ठीक है. जब ये दोनों पता चल जाएंगे, द नेक्स्ट स्टेप गेट क्लियर्ड, फिर क्या बन जाता है, एक डिज़ायर बन जाता है, ये दोनों आपके स्टिमुलस बन जाते हैं, ठीक है, जो कि फिर एक एम्प्लॉय को क्या करेंगे,
एम्प्लॉय में एक डिज़ायर, अचीवमेंट की एक डिज़ायर पैदा करता है और वो एक तरह से ड्राइविंग फोर्स बन जाती है टू बिकम अ मैनेजर और टू बिकम वट एवर हिज और हर विजन इज। ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्रिएटिव टेंशन। इन दोनों का जो गैप है, व्हाट आर माय प्रायोरिटीज और व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी एंड द करंट रियलिटी, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को अगर आपने आइडेंटिफाई किया, इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा वो क्रिएटिव टेंशन होगा। ठीक है, क्रिएटिव टेंशन या इमोशनल टेंशन में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन द कमिंग स्लाइड। Here you only need to understand कि creative tension is that driving force। ठीक है, जो हमें as employees क्या करती है, मोटिवेट करती है to achieve whatever our goal is। ठीक है, okay, what is like to have a lots of personal masters। जो चाहते हैं कि यार मैं जो हूँ पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल मास्टरी को हम सिनोनिमस यूज करेंगे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरह। ठीक है, सो फॉर दोज हु वांट्स टू हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन अ विजन इज अ कॉलिंग rather than just a good idea। ठीक है, अब अगर बंदा चाहता है कि यार ये मेरे गोल्स है और मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, देन व्हाट हैपन्स, दैट गोल और दैट ऑब्जेक्टिव इज नॉट an idea, like we in our head carry lots of ideas। बहुत ख्याल पलवी करते हैं कि हम क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे। ठीक है, अब वो विजन क्या होना चाहिए, वो विजन ऐसा होना चाहिए कि उस बंदे को जो है सोने ना दे। ठीक है, मतलब इतना एक फायर, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। ठीक है, उसको ये प्रोसेस जो है या ये जर्नी जो है, ये एक तरह से रिवॉर्ड लगना चाहिए। ये नहीं कि यार मैं जो मैं जर्नी तय कर रहा हूँ टू बिकमिंग वट एवर आई वॉन्ट और मैं आधे रास्ते में जो हूँ क्या मैं क्विट करूँ या गिव अप करूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको ये जर्नी भी रिवॉर्डिंग लगता है। ये प्रोसेस टू अचीविंग दैट गोल इज ऑल्सो समथिंग लाइक अ बिग रिवॉर्ड। Like personal mastery is not something that you possess, it's a process, a lifelong discipline। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है जिसमें एक बंदा, एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, वो जो है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हर ट्रेनिंग, हर टूल, जो भी अवेलेबल टूल्स है वो सबको यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है एक तरह से क्या होता है, पर्सनल मास्टरी। ओनली ये प्रोसेस अगर होना चाहिए तो एक बंदा जो है वो पर्सनल ग्रोथ की तरफ जा सकता है। ठीक है, people with lots of personal mastery goals are more committed, they take more initiative। ठीक है, वो स्टेटस को पे बिलीव नहीं करता, वो जो है स्टेप्स उठाता है, वो यूनिक इनिशिएटिव्स लेते हैं। ठीक है, okay, now the employers or the organizations, why they want personal masters for their personal masteries for their employees। ठीक है, कुछ obvious reasons है। full personal development has strong impact on individual happiness। ठीक है, if you are being promoted or you've got to the ladder of the success, ये क्या होता है, ये obviously आपकी personality, आपके जो inner happiness है या soul है, उसको भी happiness provide करती है। ठीक है, work should be seen as an opportunity to build something to last, something of value। Now if the work or my duty or the job that I'm performing, if it does not have any value in my mind or in my heart, कि मैं यार ये जो कर रहा हूँ ये solely मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ for the monetary benefits, वो मोटिवेशन फिर नहीं रहती। ठीक है, if the work, the duty, it has some value for you, value for any kind, ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये आप जो है मोटिवेट होगे कि आप जो है पर्सनल मास्टरी, पर्सनल ग्रोथ की तरफ
चले जाओ, ठीक है। पर्सनल मास्टरी इज मीन्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस एंड। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या है, वो अचीव होगा ओनली थ्रू पर्सनल मास्टरी ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज अगर पर्सनल ग्रोथ जो है वो क्या करते हैं, परस्यूट करते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल क्या होंगी, ओनली इस तरीके से जो है वो मीट होंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो है दिस इज एम्प्लॉयज वांट द पीएम फॉर देयर पर्सनल मास्टरी फॉर देयर एम्प्लॉयज, बिकॉज ये जो हम लोगों ने पहले देखा था, व्हाई वी वांट इट, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन वांट इट, ठीक है। एक चीज़ होती है आपकी कॉर्पोरेट एक्सेलेंस जिसको कहते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्सेलेंस इज ओनली अचीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस जिनके एम्प्लॉयज के टोटल डेवलपमेंट पे वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो एम्प्लॉयर्स बिलीव करते हैं, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने एम्प्लॉयज पे काम नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अचीव दैट कॉर्पोरेट एक्सेलेंस, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चाहती है अपनी एम्प्लॉयज़ को, ये टू वे प्रोसेस है। अगर लोगों में एम्प्लॉयज़ में पर्सनल ग्रोथ जो है वो पर्सनल ग्रोथ के डिज़ायर हो, तो ये ना सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। इनकी ज़्यादातर एग्जांपल दी जाती है जापान की, ठीक है। जापान में आपकी ड्यूटी, जो आपके जॉब होते हैं, जो आपका ऑफिस इन्वायरमेंट्स वगैरह होता है, इसको एक तरह से रिलीजियस एटमॉस्फेयर की तरह कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये है कि लाइफ टाइम जॉब्स होती है, वर्किंग्स होती है, कि एक बंदा जो है अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, वहाँ पे परसेप्शन ये है कि टिल डेथ वो बंदा या बंदी जो है उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहेंगी। तो यहाँ से क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली समझती है कि यार सिंस ही और शी विल बी पार्ट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन टिल डेथ, तो मैं भी उसको इसी ट्रीट करूँगा। और इन टर्न आपकी एम्प्लॉयज़ के क्या होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बन जाती है, ठीक है। ओके, रेजिस्टेंस टू change. Many individuals and organizations do resist personal mastery. Obviously, human being नेचर है वो स्टेटस को या कंफर्ट जोन जो होता है, कंफर्ट लेवल पे रहना पसंद करते हैं। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं ऑब्वियसली वो भी तो मतलब इंसान है, उनमें भी यही चीज़ होती है कि यार बहुत से फैक्टर्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये अपना के मतलब स्टेटस को या कंफर्ट जोन में रहने की जो बीमारी है ये भी है, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है जो कि जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। Many individual organizations do resist, so no one will ever be able to measure how much. Okay, resistance में if your boss, your manager, he or she resist your development, ठीक है, तो it will also have many reasons. एक तो स्टेटस को की बात करते हैं हम लोग, आप you might have seen in organizations the aged employees, वो नहीं चाहते अगर कोई चेंज हो, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो यूथ है
जो यंग जनरेशन है वो क्या होती है, वो ऑब्वियसली मतलब इस चीज़ में एफिशिएंट है, जबकि एजेड लोग जो है वो नहीं है इस चीज़ में। तो दे डोंट वांट रिप्लेसमेंट्स, दे डोंट वांट के ये नए टूल्स, नए तरीके ये जो है क्या हो, इमर्ज हो, जिससे जो है उनकी हो सकती है, उनकी प्रमोशन रुक जाती है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। ठीक है, ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक प्रोफेशनल जेलिसी भी कोई चीज़ होती है, वो भी हो सकती है कि यार नहीं चाहते कि आप आगे आए। ठीक है, अब उनको पता नहीं है कि नो वन विल एवर बी एबल टू मेजर हाउ मच पर्सनल मास्टरी कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी एंड द बॉटम लाइन। ठीक है, अब ये वो ये करते हैं, या तो उनको पता नहीं होता कि the resistance which I am causing towards the development and growth of an organization or an employee, how much does it cost to the organization or to myself। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता, तब जाके वो क्या करते हैं, वो ऐसे हरबे यूज़ करते हैं कि आप जो है आपकी ग्रोथ का। ठीक है, साइनिसिज्म ह्यूमनिस्टिक है। ठीक है, नहीं चाहते जेलसी, जेलसी का जिस तरह मैंने कहा कि फैक्टर है, इसी तरह आपकी साइनिसिज्म है। साइनिसिज्म किसको बोलते हैं? लोग जो है वो बाय नेचर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि यार जो भी हो, मतलब सिर्फ अपनी तरफ ही हर चीज़ के बेनिफिट को जो है अपनी तरफ देखते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते कि कोई अगला बंदा जो है वो क्या हो, उससे आगे जाए। ठीक है, फिर एक और मसला होता है, कुछ लोगों की ये फियर होता है, एक परसेप्शन होता है। वो कहते हैं कि इफ़ वी empower people to an unaligned organization, ठीक है, it can be a counter productive। ठीक है, वो कहते हैं कि यार कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज के लिए तैयार नहीं होते। अब अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं लोगों को, मैं अपने सब ऑर्डिनेट्स को क्या करूँ, इम्पावर करूँ। ठीक है, क्योंकि पर्सनल मास्टरी या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओनली वी कैन वो अचीव होती है, या उसकी तरफ हम लोग जाते हैं जब हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी मतलब लचक या इतनी एम्पावरमेंट लोगों को दी। ठीक है, तब जाके एक बंदा इनिशिएटिव ले सकता है। ऑब्वियस बात है, अगर आपको इनिशिएटिव लेने की जो है इजाज़त ना हो, आपको एक बाउंड्री में रखा जाता है, यू कैन नॉट देन बिकम पर्सनल मास्टर ऑफ योर फील्ड। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि वजह बन जाती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, मोर रेजिस्टेंस, जैसे कहा कि इट कुड इट थ्रेटन द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ अ वेल मैनेज्ड कंपनी। ठीक है, एक कंपनी है वो स्टेटस को पे जा रही है, ठीक है, कंफर्ट जोन में है, वो नहीं चाहती, वो उनके एम्प्लॉयज़, उनमें जो एम्प्लॉयज़ है वो चेंज नहीं पसंद फरमाते। जिस तरह पहले कहा कि एजेड लोग हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, to empower people in an unaligned organization can be counterproductive। जैसे पिछले स्लाइड्स में भी कहा कि काउंटर प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो कहते हैं कि यार हम अगर रेडिकल चेंज की तरफ जाए तो बजाय इसके कि हम इम्प्रूवमेंट हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, हम लोग क्या करेंगे, ये एम्प्लॉयज़ जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइन है, पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट बीइंग चेंज्ड। ठीक है, अब लोग चाहते हैं कि यार चेंज हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, हर तरह से चेंज हो, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से, अपने कंफर्ट लेवल से जो है बाहर नहीं निकलना चाहते। द डिसिप्लिन ऑफ पर्सनल मास्टरी।
committed to their vision. Okay, now personal mastery, since it is a discipline of a learning organization, personal mastery itself is a discipline. ठीक है, it has कुछ इनके उसूल होते हैं, कुछ practices होते हैं, कुछ characteristics होते हैं. ठीक है, लोगों में अगर वो adopt कर ले, अगर उन principles को follow करे, only then they can become personal masters. ठीक है, most adults have little sense of real visions. ठीक है, now we have goals and objectives but there are no visions. ठीक है, vision में फर्क होता है, goal और objective से ये different होता है. ठीक है, our personal vision must be positive. Now there are two types of vision, negative vision और positive vision. इसको हम देखेंगे. An example of a diminished vision is focusing on the means rather than the ends or the results. अब क्या करते हैं, गलती हमारी क्या होती है, एक नेगेटिव विजन की मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको. When we ask people कि आप चाहते क्या हो, what they respond, वो कहते हैं कि यार अगर सोसाइटी की बात करें तो they want कि क्राइम ना हो, they want के नेबरहुड अच्छा हो, ऐसी चीज़ें वो बोलते हैं कि वो क्या हो, वो सेकेंडरी एक तरह से मीन्स की बात करते हैं. ठीक है, वो एंड रिजल्ट के लिए वो खुद ही वो दे आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट. सही है, वो ये कहेंगे कि हम ये नहीं चाहते, ऐसे चीज़ें ना हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती है. ठीक है, लोग अच्छे हो, लोग जो है बैक बाइटिंग ना करे, हमारे हमसाए अच्छे हो, रोड्स जो है वो टूटे फूटे ना हो, अच्छे हो. ये चीज़ें क्या है, ये एक तरह से सेकेंडरी गोल्स है. ठीक है, अब अगर हम ये बात करें, एक तरह से ये हमसे ये फिर अचीवमेंट से दूर होंगे, ये सेकेंडरी रिजल्ट्स है या सेकेंडरी मेन्स है, नॉट द एंड रिजल्ट्स, ये मीन्स है. ठीक है, आगे जाके मैं फर्दर आपको एग्जांपल दूंगा तो ये क्लियर हो जाएंगे. जैसे कि कुछ लाइन्स है, when asked what they want, the people, जो कि सक्सेसफुल लोगों से पूछा गया है कि आप लोग क्या चाहते हैं, कॉमनली उनके क्या एग्जांपल होते हैं, क्या जवाब होते हैं, they would like to live in a better neighborhood or not have to worry about crime or about putting their kids through schools. They would like if their mother-in-laws returned to her house or if their back stopped hurting. सही है, such litanies of negative visions are certainly commonplace. ठीक है, even among successful people. ठीक है, तो ये विजन नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे क्राइम हो. ठीक है, ये एंड रिजल्ट नहीं है. हमारी सोच अगर ये हो, जिस तरह सिस्टम थिंकिंग में हमने बात की कि द सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इंग्लिश सेंटेंस का, या जो भी जिस लैंग्वेज में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंसेस हम अटर करते हैं, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑफ आवर थिंकिंग, ऑन आवर थिंकिंग. ठीक है, द एबिलिटी टू फोकस ऑन अल्टीमेट इंट्रिंसिक डिजायर, नॉट ओनली ऑन सेकेंडरी गोल्स, इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ पर्सनल mastery. ठीक है, there should be a difference between the goals and the means. We sometimes focus on the means or the secondary goals. ठीक है,
नेगेटिव विजन या डिमिनिश्ड विजन की अगर हम एग्जांपल दे एक और, कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव से पूछा गया सर्वे में कि आप चाहते क्या, व्हाट डू यू वांट, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि वी वांट हाई मार्केट शेयर, सही है, this was the part of their vision कि we want or we desire to have high market share. And then they were asked market share क्यों चाहते हैं, because we want our company to be profitable, ठीक है। अब अगेन उनसे पूछा गया है कि हाई प्रॉफिट इज़ एन इंट्रिंसिक रिजल्ट तो नहीं है, ठीक है, वो मैंने कहा कि मॉनेटरी टर्म में कुछ हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने सब एम्प्लॉयज़ को कहो कि वी वांट हाई प्रॉफिट्स, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल जॉइन और विल बी शेयरिंग हिज और हर विजन विद यू, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ क्योंकि अक्सर लीडर्स के लिए जो है वो प्रॉफिट्स जो है वो एक मीन है, अच्छा सही है, हाई प्रॉफिट, यू वांट हाई प्रॉफिट, यू वांट योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रॉफिटेबल, देन व्हाट देन, ठीक है। जो लास्ट एग्जांपल, जो लास्ट आंसर होता है, ये क्वेश्चनिंग होती रहती, आखिर में ये जवाब आता है कि बिकॉज वी वांट ऑल दोज हाई प्रॉफिट, हाई मार्केट शेयर, ब्ला ब्ला ब्ला, because we want to keep our integrity and our capacity to be true to our purpose in starting the organization, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस की बात की है, अब जो है इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात की है, ठीक है। ये जो लास्ट में आता है ये आपका ओरिजिनल गोल है। इससे पहले जो चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, मैं अच्छे बंगले में रहना चाहता हूँ, ये क्या, ये मीन्स है, दीज आर नॉट, इफ़ यू सबकॉन्शियसली थिंक, दीज आर नॉट द गोल्स, दिस शुड नॉट बी द गोल्स। ये गोल्स आपको जो है वो डायरेक्शन नहीं देती, ठीक है। ओके, holding now towards achieving the personal mastery, these are some points, some principles, वो एक प्रिंसिपल था। अब उसके बाद ये जो है होल्डिंग क्रिएटिव टेंशन, okay, creative tension is the gap between our vision and our current reality. पहले भी कहा कि आपका विजन होना चाहिए एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर करंट रियलिटी। ये दोनों चीज़ें अगर आपने आइडेंटिफाई किए और आपको पता हो, देन व्हाट हैपन्स, देयर इमर्जेस अ क्रिएटिव टेंशन। और यही क्रिएटिव टेंशन जो है क्या होता है, ये बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेस भी दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपको हेल्थ को, और पॉजिटिव स्ट्रेस भी होती है, ठीक है, जो कि आप में जो है वो बर्निंग डिज़ायर क्रिएट करता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव टेंशन इज सेंट्रल टू द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल मास्टरी, सही है, इंटीग्रेटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिसिप्लिन। ये दोनों चीज़ें हो तब जाके आप पर्सनल मास्टरी जो है वो क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, सही है। Still, creative tension often leads to anxiety, sadness, discouragement or worry, ठीक है।
बट दीज नेगेटिव इमोशंस आर इमोशनल टेंशन एंड नॉट क्रिएटिव टेंशन, ठीक है. अब if these tensions or the stress or the discouragement it stopped you from achieving your vision, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, then we call it emotional tension. हमें जो है इनको इमोशनल टेंशन नहीं बनने देना है, इसको क्रिएटिव टेंशन बनाने देना है, ठीक है. instead of focusing more on hurdles, on problems, ठीक है, on factors of resistance, हम क्या करना चाहिए, हमें जो है we should focus on the end result, ठीक है. watch out for the eroding goals archetype, ये भी एक archetyping eroding goals, ठीक है. अगर आप में वो burning desires जो है वो goals को achieve करने के लिए वो क्या हो, diminish हो रहे हो, so then that will be emotional tension, ठीक है. अगर आपका goal और आपका objective हो कि you are whatever happens you are achieving your vision, ठीक है, तो वो तब तक वो creative vision रहेगा. लेकिन जब अगर आप जो है वो क्या होंगे eroding goals या अपने goals अपने objective से पलट जाओगे, मुड़ जाओगे या उसको जो है diminish करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स को आप रिड्यूस करोगे, ये एक तरह से आपके लिए अलार्मिंग है. यू विल बी देन कॉलिंग इट एन इमोशनल टेंशन, ठीक है. okay, the next one is the next principle of personal mastery is sorry, structural conflict, the power of your powerlessness. Now this is very interesting. जिस तरह हम लोगों ने कहा कि सिस्टम इज पार्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस, इसी तरह स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में भी और ह्यूमन बीइंग के नेचर में भी स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. Okay, the power of powerlessness या स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल्स, हम क्या कहते हैं, बचपन से हमें अक्सर यही सिखाया जाता है, हमें लिमिटेशंस पे गौर करना सिखाया जाता है. ओनली द लिमिटेशंस और द रेजिस्टेंस, ये ना करें. अब अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों को हम कहते हैं हाँ इसको टच नहीं करना, यहाँ से गिर जाओगे, जल जाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा. we always prefer to teach them the limitations, ठीक है. अब यही चीज़ें जो है हमें डेवलप हो जाती है, ठीक है. एक सिनारियो यहाँ पे दी गई है जिसको मैं कोट करूँगा. many people, even highly successful people, harbor deep belief contrary to their personal mastery, ठीक है. very often these beliefs are below the level of conscious awareness. हमें पता नहीं होता लेकिन हमें डीप एक बिलीफ है हमारे अंदर ही होती है कि हम ये नहीं कर सकते, ठीक है. कॉन्शियसली ये चीज़ जाहिर नहीं होती, दीज आर नॉट ऑन द, ये जो है सतह पे नहीं होती, ये जो है सब कॉन्शियस माइंड में होती है हमारे, ये बिलीफ होती है, ये डेवलप हुई होती है, ठीक है. हम जितना भी कहे कि यार नहीं है, मैं ये चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ अचीव कर सकता हूँ, लेकिन डीप डाउन एक फियर होता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फियर होता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ठीक है. टू सी व्हाट आई मीन, अच्छा, ट्राई द फॉलोइंग, मैं कोट करूँगा. ट्राई द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट,
जोर से आप लोग बोलो, से आउट लाउड द फॉलोइंग सेंटेंस। आप लोग ये जुमला जो है क्या करोगे मेरे साथ, रिपीट करोगे। आई कैन क्रिएट माई लाइफ एग्जैक्टली द वे आई वांट इट इन ऑल डायमेंशंस, वर्क, फैमिली, रिलेशनशिप, कम्युनिटी एंड लार्जर वर्ल्ड। ना ये सेंटेंस आप जब बोलते हो, ठीक है, नोटिस योर इंटरनल रिएक्शन टू दिस टू दिस असर्शन, टू दिस सेइंग्स, जो भी हम लोगों ने कहा, आप नोटिस करो इंटरनली, सबकॉन्शियसली आप नोटिस करोगे। द लिटिल वॉइस इन द बैक ऑफ योर हेड, हु इज ही किडिंग, ठीक है, इन द बैक हैंड मजाक लगेगा कि यार अब क्या कह रहे हो, कि आप जो है अपनी लाइफ जो है वो इस तरह बनाओगे कि हर आप फैमिली, रिलेशनशिप, कम्युनिटी, वर्क, जितने भी डायमेंशन है सब में आप क्या करोगे, आप एक्सेलेंस अचीव करोगे, ठीक है। दैट सबकॉन्शियस माइंड डजंट रियली बिलीव दैट, ठीक है। पर्सनली एंड इन वर्क, श्योर, ठीक है, मैं पर्सनली और वर्क की अगर बात करूं, मैं एक्सेलेंस जो है अचीव करूंगा, लेकिन कम्युनिटी एंड द लार्जर वर्ल्ड, what do I care about the larger world, ठीक है, एक जवाब आता है, ठीक है। all of these reactions are evidence of the deep stated belief। ये belief हमें unfortunately हमारी पेरेंटिंग इस तरह हुई होती है, हमारी सोसाइटी में ये नेगेटिविटी होती है कि हम लोग लिमिटेशंस सिखाते हैं, और ये लिमिटेशंस जो है वो क्या होते हैं, ये हमारी पावरलेसनेस को शो करती है, ये पावरलेसनेस होती है, और यही पावरलेसनेस की इतनी पावर होती है कि हमें जो है पर्सनल मास्टरी से रोक देती है, ठीक है। एक और सिनारियो में आप बता देता हूँ। एज चिल्ड्रन वी लर्न व्हाट आवर लिमिटेशंस आर, चिल्ड्रन आर राइटफुली टॉट लिमिटेशंस एसेंशियल टू दिस सर्वाइवल। यहाँ से गिर जाओगे, यहाँ मत जाना, यहाँ जल जाओगे, इसको टच मत करना, इससे लग जाओगे, ये सारी चीजें। बट टू ऑफन दिस लर्निंग इज जनरलाइज्ड। अब वही लर्निंग जो है ये तरह से जनरलाइज हो जाती है। हम बड़ों को भी ये कहते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यहाँ जो है इस कंपनी के साथ आप डील नहीं करना, इस कैरियर पाथ को परस्यू मत करना, इसमें फ्यूचर नहीं है। वी ऑलवेज फोकस ऑन द नहींस, द नोज, ठीक है। वी आर कॉन्स्टेंटली टोल्ड वी कैंट हैव और कैन डू सर्टेन थिंग्स, हम ये नहीं कर सकते, हम ये अचीव नहीं कर सकते, एंड वी मे कम टू अज्यूम दैट वी हैव एन इनएबिलिटी टू हैव व्हाट वी वांट, ठीक है। अब एक बिलीफ बन जाता है कि शायद जाहिर बात है हम जो चाहते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी जो है ये एक तरह से दीज आर द पावर ऑफ द स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट हम में होता है। हम अगर अचीवमेंट की बात करते हैं तो इसको स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि ये हर जगह पे ये जो है ये स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो है एग्जिस्ट करता रहता है, ठीक है। और ये जो है क्या करता है, आपके जो क्रिएटिव टेंशन है यहाँ पे आपकी लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। क्रिएटिव टेंशन को या तो ये इमोशनल टेंशन बना देता है और या क्रिएटिव टेंशन बना देता है। अगर आप कामयाब हो जाते हो, क्रिएटिव टेंशन आप में होता है, तो आप क्या करते हो, यू डैम केयर अबाउट द लिमिटेशंस, और आप जाते हो और आप अचीव करते हो, ठीक है। योर करंट रियलिटी एंड योर विजन में ये स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो है अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। ओके, यही चीजें एलिमिनेटिंग सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। Many of us do not believe that we are worthy or deserving to have what we truly desire। वही चीज़ें होती है, हमें ये चीज़ जो है फिक्स्ड होती है, ये बाय डिफॉल्ट हमें जो है अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती है कि हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। Manifestations are loss of energy, not able to finish the job, unexpected obstacle develop, people let us down, we don't believe we can do it। ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। यही सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को, जिसको SLB भी कहते हैं, ठीक है। नाउ हाउ डू वी कोप विद द स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग विद सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ और द SLB या द पावर ऑफ पावरलेसनेस की जो रेजिस्टेंस है उसके साथ हम कैसे कोप अप करते हैं, ठीक है। उनके लिए 3 आपकी स्ट्रेटजीज बताई गई है। द फर्स्ट वन इज लेटिंग आवर विजन एरोड, ठीक है। या तो हम क्या कहते हैं अपनी विजन को क्या करेंगे, एरोड करेंगे, उनसे हम लोग मुंह मोड़ेंगे, हम लोग यू टर्न लेंगे, हम
अपना विजन जो सेट स्टैंडर्ड है उनको कम करेंगे, ठीक है। या फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनिपुलेशन, strategical limitations that involve conflict manipulation, in which we try to manipulate ourselves into greater effect toward what we want or what we don't want, or avoiding what we don't want. The second one is conflict manipulation. Now this is the very good strategy. Conflict manipulation में क्या करते हो? You just turn up your thinking. आप क्या करते हो? आप अपनी limitations को, जो मैंने कहा कि बाय प्रोडक्ट्स हम जो है मीन्स पे फोकस करते हैं, गोल्स पे फोकस नहीं करते। इन अचीविंग आवर विजन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव विजन की हम लोगों ने जो बात की, पॉजिटिव और डिमिनिशिंग विजन की बात की, हम डिमिनिशिंग विजन के बजाय हम लोग क्या करते हैं? पॉजिटिव विजन पे फोकस करते हैं, ठीक है। वी फोकस ऑन द एंड रिजल्ट एंड वी परस्यू इट, ठीक है। हम नेगेटिव ऑब्स्टेकल्स और इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी आपको बहुत ज़्यादा बुक्स में मिलेंगी। एंड द लास्ट वन इज विल पावर। Willpower is so common among highly successful people that may seem to be considered must be successful in achieving goals, believers pay the price. Chup shut. Oops. The willpower, ये क्या होती है? Is mostly common among highly successful people. ठीक है, that many see its characteristic as synonymous with success. ठीक है, वो लोग जो कि who are ready to pay the price, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो अपनी उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रेंथन करते हैं कि वो जो है they don't pay attention to the obstacles, to the negative energies surrounding them, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो अपने सारे जितने भी ऑपोजिशंस है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सब के जो है प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं, सही है। Okay, the last one is focusing on what we don't want, conflict manipulation, negative vision ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनिपुलेशन के आप जो है फोकस मत करो कि आप चाहते क्या हो, okay? सही है। द वे मेनी पीपल, मैनी एथलेटिक कोचेस मैनिपुलेट एंड मोटिवेट देयर प्लेयर्स, ठीक है। द वे मेनी मैनेजर्स पॉइंट आउट दैट हाईली अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस इफ द कंपनीज गोल्स आर नॉट अचीव्ड, ठीक है। विल पावर भी डिस्कस कर लेंगे हम लोगों ने। ओके, सॉरी, थोड़ा यहाँ पे। ओके, टू चेंज द सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ वी नीड अ कमिटमेंट टू द ट्रुथ एज ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ क्या करना है? यहाँ पार्ट आता है कि हम वी शुड टॉक टू आवर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। हम अपने आप से सच बोलेंगे, ठीक है। टेल योर सेल्फ द ट्रुथ, कंटिन्यूअली ब्रॉडनिंग आवर अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस रिगार्डिंग आवर करंट रियलिटी एंड व्हाट वी वांट, ठीक है। ये सबकॉन्शियस के साथ हमें बातें करनी है, ठीक है। Continually deepening our understanding of the structure underlying current events, उन स्ट्रक्चर्स को, उन इवेंट्स को, उन अंडरलाइनिंग ऑब्स्टेकल्स को हम लोग गौर से देखें, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको और उनके लिए ऐसे स्ट्रेटजीज बनाए कि व्हाट इज़ द वे आउट, ठीक है, बजाय थिंकिंग और फोकसिंग ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। वी शुड नॉट बिकम लाइक द प्रिजनर ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ विच वी आर अनअवेयर होल्ड अस प्रिजनर। अगर हम स्ट्रक्चर उस सिस्टम को का हमें नहीं पता, तो हम उस सिस्टम या उस स्ट्रक्चर के जो है क्या होते हैं? प्रिजनर्स होते हैं। Discovering these structures at work is the stock and trade of people with high level of personal mastery, ठीक है। We must be aware of the structure, ठीक है। प्योर ऑब्जर्वेशन, अब इसको रिलीजियसली लिंक किया गया है, सेइंग द ट्रुथ टू योरसेल्व्स, ठीक है। अगर
मेडिटेशन की बात की जाए, या हम मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, ये भी एक तरह से हम मेडिटेट करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन में क्या होता है, यू टॉक टू योर सबकॉन्शियस माइंड, यू आर अवेयर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और यहाँ पे अपने आप के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने करंट रियलिटी के साथ आप क्या ट्रूथफुल होते हैं, ठीक है। ओनली व्हेन यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल बी ट्रूथफुल विद यू, और आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। प्योर ऑब्जर्वेशन, बुद्धिस्ट कहते हैं विटनेसिंग हिंदूज वगैरह, व्हाट अ ट्रेजेडी दैट अ मैन मस्ट डाई बिफोर ही वेक्स अप। कुरान कहता है कि जब बंदा जो है वो मर जाता है, एक्चुअली उसी टाइम उसकी आंख जो है वो खुल जाती है, ठीक है। सो दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू आवर अनअवेयरनेस, ठीक है, और नॉट having dialogues or discussion with our subconscious mind. You shall know the truth and the truth shall set you free. Christianity, Bibles वगैरह कहते हैं कि अगर आप truth जानते हो और truth का पता हो, तो only then that truth will set you free, और आप जो है वो क्या करोगे, अपने उस prison से और वो जो self limiting belief से उसे आप निकल जाओगे, ठीक है। Using the subconscious, or you don't really need to figure it all out. सही है। People with high level of personal mastery can accomplish extraordinarily complex tasks with grace and ease. अब subconscious, for example, if we teach the kids how to have a spoon in his or her hands, ठीक है, आपने खाना स्पून के साथ कैसे खाना है। अब अगर वो एहतियात से सबकॉन्शियसली पहले क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड से वो क्या होती है, सारी जो बिहेवियर होता है, जो एक्शंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो क्या कहते हैं, वो इतना मास्टर हो जाता है कि वो कॉन्शियसली वो चीज़ें जो कर पाता है। अनदर एग्जांपल, व्हेन वी आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव, हम क्या करते हैं, 80% ऑफ अस सबकॉन्शियसली हम ब्रेक्स, क्लच, रेस वगैरह जो भी चीज़ें होती है, एक्सेलरेशन जो होती है, वो क्या करती है, सबकॉन्शियसली हम ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम मास्टर बन जाते हैं तो सब कॉन्शियस से वो क्या हो जाते हैं, वो चीज़ें निकल के फिर कॉन्शियस पे आ जाते हैं, हम मास्टर तब बन जाते हैं, ठीक है। द सब कॉन्शियस इज इंटीमेटली इन्वॉल्व इन द पर्सनल मास्टरी, थ्रू इट ऑल ऑफ अस डील विद कम्प्लेक्सिटी। अब एक कम्प्लेक्स सिचुएशन आता है, आप उसको जो है कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं कर पाओगे। आपने सब कॉन्शियस माइंड से विद ग्रेस एंड विद ईज यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू ईच फेज or to each piece of that complex environment or situation, ठीक है। Okay, what distinguishes people with high level of personal mastery is they have developed a higher level of rapport between their normal awareness and their subconscious. ये regularly interaction होती है between their what they are seeing, और वो अपने subconscious के साथ कैसे meditate करते हैं, ठीक है। Subconscious capacity is larger by factor of 10 as compared to the conscious. अब इसकी पावर भी देख रहे हैं, कितनी इसकी जो है ज़्यादा पावर है सबकॉन्शियस की। अगर पर्सनल मास्टरी चाहते हो, you have to meditate, you have to have the idea of where you are and where you want to be. Only then you can become a personal master, ठीक है। The core value of personal mastery, integrate reasons and intuitions, ठीक है। अब ओनली आपकी लर्निंग्स, आपकी रीजंस, आपके लॉजिक्स नहीं चलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो है एक्सपीरियंस, आपके इंट्यूशंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सी योर कनेक्टेडनेस टू द वर्ल्ड, यू हैव टू बी इन हार्मनी विद योर सराउंडिंग्स, विद द वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, ठीक है। बी कंपैशनेट। Obviously if you are connected to the world, ठीक है, आप अपना reasons और intuitions use करोगे, so you will become compassionate. Compassionate means having that empathy, ठीक है। आपको पता है कि अगला बंदा, organization, आपके subordinate, आपके supervisors, वो कहाँ है, वो अगर कोई डिसीजन लेते या कोई बात करते, वो किस पोजीशन में, आपने उसकी जगह पे खड़े होकर सोचना है, ठीक है। Be committed to the whole. Be committed to the whole means the compassion, the competitiveness to the world, ठीक है, the reasons and the intuitions, इन सब को मिला के आपने इन सब के साथ क्या होना है, committed रहना है, ठीक है।
नाउ फोस्टरिंग पर्सनल मास्टरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वही बात है पहले स्लाइड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया. यू कैन फोर्स एम्प्लॉयज इनटू पर्सनल मास्टरी. टू डू सो इज द मोस्ट श्योरफायर वे टू इम्पीड द जेन्युइन स्प्रेड ऑफ कमिटमेंट टू पर्सनल मास्टरी. ठीक है, पर्सनल मास्टरी अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी विलिंग होना चाहिए और आपके एम्प्लॉयज को भी. ठीक है, लीडर्स मस्ट फोस्टर अ क्लाइमेट इन विच द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल मास्टरी आर प्रैक्टिस इन डेली लाइफ. ठीक है, अब लीडर्स में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. कंपैशन होना चाहिए, उसके कमिटमेंट टू द ट्रुथ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. और एक सबऑर्डिनेट के, एक एम्प्लॉयज़ के हर चीज़ का उनको पता है कि यार इफ़ ही और शी इज़ अनपरफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग, क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे होते. ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या करता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. उस तरह एक क्लाइमेट बनाना चाहिए जिसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हो, मोटिवेट हो, इंकरेज हो इन टर्म ऑफ रिवॉर्ड्स, इन टर्म ऑफ मोरल सपोर्ट. ठीक है, इस्टेब्लिशिंग विजन, बीइंग कमिटेड टू द ट्रूथ, चैलेंजिंग द स्टेटस क्वो. ठीक है, will reinforce the idea that personal mastery is truly valued in the organization. बहुत से एम्प्लॉयज़ को आपने देखा होगा कि वो पर्सनल मास्टरी पे तो बिलीव करते हैं, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करती है, मोटिवेट या इंकरेज नहीं करते, तो वो क्या हो जाते हैं, दे लूज होप. वो दे गिव अप कि यार नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दूँ. ठीक है, विल रीइंफोर्स द आइडिया दैट पर्सनल मास्टरी इज कंटिन्यूअल और ऑनगोइंग process. Work to develop all 5 disciplines at the same time. Leader should be a model. ठीक है,